چلنے کا۔ واجب صد تکریم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جتنے معززین علاقہ میرے ساتھ دائیں بائیں اسٹیج پہ بیٹھے ہیں یا میری آنکھوں کے سامنے جتنے معززین علاقہ بیٹھے ہیں، تمام اقوام اور تمام برادریوں سے تعلق رکھنے والے تمام سامعین، آپ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ الیکشن آتا ہے تو ہر کینڈیڈیٹ اپنا اپنا منشور لے کر میدان میں آتا ہے، اور منشور میں کینڈیڈیٹ کی گفتگو ہوتی ہے کہ میں اپنے حلقہ میں ترقیاتی کام لے کر آؤں گا، میں اپنے حلقہ میں بجلیاں دوں گا، سولنگ لگواؤں گا، سوئی گیس لے کر آؤں گا، تعلیمی پروجیکٹس لے کر آؤں گا۔ ہر کینڈیڈیٹ ایک اپنا منشور بیان کرتا ہے۔ میرا بھی ایک منشور ہے۔ وہ منشور کیا ہے؟ وہ منشور قرآن پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لو، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو۔ یہ 3 جملوں پر مشتمل منشور ہے۔ عوام الناس کی خدمت کی نیت سے سیاست میں قدم رکھا تھا 2011 کے ستمبر میں۔ اس کے بعد سیاسی سفر شروع کیا۔ پہلے ہی سال الحمدللہ 38,000 لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا 2013 میں۔ 2018 کے الیکشن میں میرا حلقہ تبدیل کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود میں نے 72,000 ووٹ حاصل کیا۔ 14,000 سے زائد ووٹ میرا ڈبل کر دیا گیا۔ 2018 کے بعد 2023 تک اسی حلقہ میں نے محنت کی، لیکن اس کے ساتھ یہ دوبارہ ایک نیا حلقہ شامل کر دیا گیا۔ میں پھر بھی مایوس نہیں ہوا۔ میں نے اپنی عوام الناس سے رابطہ رکھا ہے، عوام میں اندر رہا ہوں، عوام کے ساتھ دکھ سکھ اٹینڈ کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب الیکشن 8 فروری کا آ رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے نمائندے اپنے جیسے چنیں، جن کو آپ کا احساس ہو، جن کو آپ کا خیال ہو۔ اگر آپ ایسے نمائندے چنیں گے جو آپ کو شکل تک نہیں دکھاتے 5 سال، تو پھر یہی حال ہوگا جو آپ کی گلیوں کا ہے، جو آپ کی سڑکوں کا ہے، جو آپ کے سکولوں کا ہے اور جو آپ کے ہسپتالوں کا ہے۔ اسی حال میں رہو گے۔ 1970 سے 2022 تک ایک ہی خاندان حکومت کرتا آ رہا ہے، اور اس خاندان نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی۔ نون لیگ کی حکومت تھی تو وہ اس کا حصہ تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو وہ اس کا حصہ تھا، کاف لیگ کی حکومت تھی تو وہ خاندان اس کا حصہ تھا۔ جو بھی پارٹی پاکستان میں حکومت میں آئی، یہ ہر اس حکومتی پارٹی کا حصہ رہے، اور پی ٹی آئی میں بھی حکومتی پارٹی کا حصہ رہے، لیکن کارکردگی کے حساب سے 0%۔ کارکردگی نہیں۔ اگر ان کے اقتدار سے نفع اٹھایا ہے تو چند خاندانوں نے، ہر یونین کونسل میں ایک آدھ خاندان انہوں نے چنا ہوا ہے، اس کو نوازتے ہیں، اور وہی خاندان پھر اس پوری یونین پر حکمرانی کرتا ہے اور لوگوں کو دبا کے رکھتا ہے، پھر اپنے پریشر کی وجہ سے ہر سال ان کو ووٹ لے کر دے دیتا ہے۔ یہ سیٹ اپ کیا انہوں نے۔ لیکن آج 2024 ہے، یہ 1970 نہیں ہے۔ 2024 کا نوجوان ان سے پوچھنا چاہتا ہے کہ ہمارے حلقے کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی کیوں ہیں؟ ہمارے ہسپتالوں میں دوائیاں کیوں نہیں ملتی؟ ہمارے بچوں کے پاس ڈگریاں تو ہیں، نوکریاں کیوں نہیں؟ ہمارے حلقے میں انڈسٹری کیوں نہیں تاکہ ہم مزدوری کر سکیں؟ ہمارے بچوں کے مستقبل پہ کیوں ڈاکہ ڈالا گیا ہے؟ تمہارے اور ہمارے لائف سٹائل میں فرق کیوں ہے؟ جب تم اقتدار میں ہمارے ووٹ سے پہنچتے رہے ہو، بتاؤ تم نے جنگ کو کیا دیا ہے؟ کوئی ایک میگا پروجیکٹ جو یہ خاندان 1970 سے 2022 تک حکومت میں رہنے والا میرا مد مقابل خاندان صاحبزادہ گروپ، کوئی ایک پروجیکٹ دکھائے جس کو وہ فخری انداز میں بیان کر سکے کہ ہم نے جنگ میں یہ پروجیکٹ دیا۔ کوئی ایک دکھائے۔ شومی قسمت اور جنگ کی بدقسمتی کہ جب یہ ضلع ناظم تھے تو انہوں نے ضلع ناظم ہوتے ہوئے جنگ کی گرانٹ ٹوپا کو دے دی، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت میں پورے جنگ میں ان کی حکومت تھی، 3 MNA یہ
5 MPA इनके मुंशी थे, MPA भी इन्हीं के, MNA भी खुद। फिर भी हम जंग यूनिवर्सिटी का फंड लिया की तरफ चला गया। ये 2024 है, पूछा जरूर जाएगा। ये नहीं हो सकता हम पूछते हैं सड़क क्यों टूटी हो, ये कहते हैं जी इमरान खान दा फोटो देख लो। हम कहते हैं अस्पतालों में दवाई क्यों नहीं, कहते हैं जी इमरान खान दा फोटो देख लो। हम कहते हैं हमारे बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिली, कहते हैं इमरान खान का फोटो देख लो। तुम इमरान खान के फोटो के पीछे नहीं छुप सकोगे। 8 फरवरी का इलेक्शन तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाएगा और इंशाअल्लाह हल्के की आवाम तुमसे बगावत करेगी और इंशाअल्लाह हम तुम्हें इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। मेरे रब पे मुझे भरोसा है। अल्लाह के पास एक निजाम है। कुछ लोग जमीन की ताकत को बनते हैं लेकिन आसमान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दीवार पे लिखी हुई हकीकत है 8 फरवरी को ये हारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आम आदमी जीतेगा, मजदूर जीतेगा। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अवाम जीतेगी, मेरे जीतने से अवाम की फतह। मैं लड़ जाता हूं अल्लाह के फजल से, चाहे मैं अपोजिशन में भी हूं, लेकिन मैं अपने मेहरबानों के लिए बड़े बड़े अफसरों से टकराया हूं। अहमदपुर सियाल की धरती पर एक SHO ने मेरे एक वर्कर को झिड़का था और उसे थाने से निकाला था। 1 घंटा भी मैंने उस SHO को थाने नहीं रहने दिया। घंटे के अंदर मैंने उसी थाने से उसका बिस्तरा गोल। बहुत अच्छे, मेरा किरदार है। हवेली बहादुर शाह में गरीब लोगों की कोठड़ी जला दी गई। वहां के जगीरदार लोग थे, उस वक्त के जस्टिस के लेपालक लोग थे और उस वक्त के एक नवाब के खास थे। उन्होंने वहां पर उन गरीबों की झोपड़ी जला दी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे पहुंचा। 2011 की बात है। वहां सड़क पे 4.5 घंटे खड़ा रहा। 6 कुरान पाक जलाकर शहीद कर दिए गए थे। उनके बकिया शहीद शुदा औराक में लेकर आया, सड़क पे खड़ा रहा। 4.5 घंटे मैंने गर्मी के मौसम में सड़क पे गुजारे। मैंने मौके पे बंदे गिरफ्तार करवाए, बावजूद जज की रुकावट के और उस नवाब की रुकावट के बंदे गिरफ्तार करवाए। केस लड़ा, 75 साल सजा करवाई उनको। मेरे से पहले जिन इलाकों में लोग अपनी रियासत बनाकर बैठे थे और चोरियां दिन दिहाड़े करके फिर भूंगा मांगा करते थे, मैंने कई साल पहले की चोरियां वापस हटवाई और मैंने कहा अब कोई जगीरदार चोरी करवा के फिर भूंगा मांगे, मुझे बताना। अगर मैं चोरी वापस न हटवा सका तो चोरी मैं खुद अदा करूंगा। मेरा किरदार है। ये लोग पागल नहीं है जो लाखों की तादाद में मेरे पीछे भागे हुए हैं। इन्होंने मेरे काम देखे हैं, इन्होंने मेरा किरदार देखा है। यहाँ थाना गढ़ महाराजा के अंदर एक भट्टी बिरादरी का बंदा रात को उठाया और तशद्दुद से मार दिया। दूसरे दिन उसकी लाश पड़ी थी, कोई पुरसाने हाल ना था। पीटीआई की गवर्नमेंट में था, पीटीआई की गवर्नमेंट थी और मैं शदीद तरीन अपोजिशन में था। उस वक्त का SHO चहेता था पीटीआई का। मैं उस मौके पर भी पहुंचा। मैंने वहां पे खड़े होकर अल्लाह के फजल से, जब हाफिज अताउर रहमान DPO था, उसको मजबूर किया और मजबूर करके पूरे थाने के खिलाफ 302 की FIR दर्ज करवाई। SHO पर भी पर्चा, पूरी पुलिस पे पर्चा दर्ज करवाया। मेरा किरदार बोलता है। बहुत अच्छे, बोलना आता है। मैं गा नहीं हूं और गूंगा भी नहीं हूं। रब ने बोलने की ताकत दी है। सीने में धड़कता हुआ सलाम है, सीने में धड़कता हुआ दिल है और ये धड़कन गरीबों के नाम है, ये धड़कन मजलूमों के नाम है, ये धड़कन मजबूरों के नाम है, ये हर उस आदमी के नाम है जिसके साथ जुल्म किया जाता है, चाहे थाने में चाहे कचहरी में। हम साथ हैं आपके। बहुत अच्छे। और ये भी नहीं कि मैं कोई कमजोर सा कैंडिडेट हूं कि जो तुम्हारे पास आ गया और आपको तकरीर करके चला जाऊंगा। और नींदें हराम कर दी हैं इनकी मैंने। पूछो उनसे, छठी का दूध याद करवा दिया है इनको। इनको पता चल गया कि कोई आया है इनके सामने।
कमजोर नहीं हूं, अल्लाह का फजल है। जिस दिन इलेक्शन होगा देखना, हर पोलिंग से मेरा रिजल्ट देखना, इंशाल्लाह हर पोलिंग से निकलता हुआ रिजल्ट इनकी शिकस्त का ऐलान बनकर निकले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग अगर मेरे बाजू मजबूत करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये एक आम आदमी की फतह होगी, एक आम आदमी की फतह जो सिर्फ 4 एकड़ का मालिक है, ये उसकी फतह होगी। और उसकी फतह हर गरीब और मजलूम और मजबूर की फतह होगी। आप मेरा साथ दें, जान छुड़वाएं इन लोगों से जिन्होंने हमारे जंग को पसमानदा रखा है, जान छुड़वाएं इनको जिनके पास सिवाय इमरान खान के फोटो के बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इमरान खान के फोटो का सहारा लेकर ये आपका वोट अब आपसे छीनना चाह रहे हैं। वोट बहुत कीमती है, बहुत कीमती। और अगर मेरा कोई पीटीआई का नौजवान मेरी तकरीर यहाँ पे सुन रहा है तो मैं उसे कहूंगा मर्जी तेरी अपनी, लेकिन अगर वो कैंडिडेट आए तो उसके सामने कुरान रख के उससे उस पे हाथ रखवा लेना कि जीतने के बाद वो इमरान खान के साथ रहेगा, नून लीग में नहीं जाएगा। तुम्हारा ये कैंडिडेट मुआहदा कर चुका है, तुम्हारा ये कैंडिडेट बयान हल्फियां दे के आ रहा है, यकीन दहानियां करवा के आया कि मुझे सिर्फ इमरान खान का वोट लेने दो, फिर मैं नून लीग में शामिल हो जाऊंगा। तुमसे वोट ठगेगा, इमरान खान के नाम पर इमरान खान के साथ खड़ा नहीं होगा। ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं और मैं स्क्रीन के सामने बता रहा हूं। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो एक कुरान पाक वीडियो की मौजूदगी में ले जाओ और उसके सामने रखो और उसे कहो इस पे हाथ रख कि आप इलेक्शन के बाद भी इमरान खान के साथ रहोगे। ये जरूर करवा लेना, मैं पीटीआई के नौजवानों को मशवरा दे रहा हूं। बाकी मैं इंशाल्लाह ए वारी तो साडी है, इंशाल्लाह मुझे यकीन है अपने रब पे। देखे ना, कतार में जो बंदा लगा हुआ हो ना, एक न एक दिन उसकी वारी आ ही जाती है। बेशक मैं कतार में लगा रहा हूं, अब मेरी बारी आ गई है। ये कुछ भी कर लें, पिछला इलेक्शन भी इन्होंने मुझसे छीना था, जीता हुआ मैं था, इन्होंने छीना था। अब वो नहीं रहे जो इनको इलेक्शन छीन कर दिया करते थे। अब सहारे छीन गए इनसे, अब इनके पास कोई सहारा नहीं सिवाय इमरान खान के फोटो के। हम अपने वीएन पे वोट मांग रहे हैं कि हमारा किरदार देखें। हम हल्के में पूरा 5 साल रहते हैं, अवाम की खिदमत करते हैं, बावजूद अपोजिशन में होने के किसी अफसर की जरूरत नहीं है कि हम भी कहें किसी अफसर के पास जाएं और सिफारिश करें और वो कहे जी तुसी अपोजिशन है चो लिहाजा चले जाओ। इतनी जरूरत तो हमने इनको उस वक्त भी नहीं करने दी। हम उस वक्त भी इस ताकत में रहे हैं और तुम्हें भी यही सिखाना चाह रहे हैं कि शाहीन उड़ा ये कैदी परिंदों को बताकर, टकराओ सलाखों से, उड़ो खूह में नहाकर, बाजू पे भरोसा है तो इंसाफ न मांगो वरना पछताओगे इस दौर में जंजीर हिलाकर। अपने वोट की ताकत समझे, अपने वोट की कुव्वत समझे। और हस्सू बलेल के लोगों, मेरे रब ने मुझे कामयाब करना है, मैं अपने रब से पर उम्मीद हूँ। कामयाब होने के बाद अगर मैं कारकर्दगी ना दिखा सका, मैं ढीठ नहीं हूँ कि मुंह उठा के फिर वोट मांगने आ जाऊंगा, मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। बहुत अच्छे। कोई जरूरत नहीं है, मैं बेइज्जत होकर सियासत करने का आदी नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे और भी इज्जत दे रखी है मिंबर मेहराब के जरिए। मैं बेइज्जत होकर सियासत नहीं करूंगा। अगर मैं कुछ ना दिखा सका, मैं आइंदा वोट मांगने नहीं आऊंगा आपके पास। आप एक बार एहतमाद करें और भरोसा रखें, इंशाअल्लाह लम्हा बलम्हा मेरे दुख भी आपके साथ साझे होंगे और मेरे सुख भी आपके साथ साझे दे रहे हैं। जो तुम्हें आज रफाकत के फरेब, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। हम सफर ढूंढो न किसी का सहारा चाहो, ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। मैं आप तमाम मेहरबानों का, अपने मेहरबानों का जो है शुक्रगुजार हूँ जितने लोग ने इतना बड़ा बेहतरीन जलसे का इंतज़ाम किया है। बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको